आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र में, हमारे वे फॉरवर्ड सेशन में। देवी सज्जनों, कल जब हमने अपना सत्र आरंभ किया, उद्घाटन सत्र आरंभ किया, तब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश आज अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि एज पर द वर्ल्ड बैंक, इंडिया टुडे इज मोर रेडी टू combat the global headwinds than any other economy in the world because we have very strong macroeconomic fundamentals. That extended, that was very inspiring and motivating for all the investors, the global and the domestic investors, towards ensuring the return on investment. और हम सभी भारतीयों के लिए और मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी। और आज हम अपना समापन सत्र और वे फॉरवर्ड सेशन कर रहे हैं। हम सभी का फिर से अहोभाग्य है कि हमारे साथ हमारे माननीय अतिथि गण हैं, माननीय मंत्री गण हैं, वो सभी जिनका मध्य प्रदेश के साथ भी एक बहुत ही राजनीतिक, पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ता रहा है। और अतिथि देवो भव के भाव से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वयं स्वागत करना चाहेंगे, उनको अंग वस्त्रम भेंट कर। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत करें श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। एंड मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस एज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर extends his greetings and felicitates Shri Narendra Singh Tomar ji, the Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare. Welcoming Shri Jyotiraditya Scindia ji, the Honorable Union Minister for Civil Aviation and Steel. Our greetings to Dr. Virendra Singh Khatik ji, to Shri Fagan Singh Kulaste ji. Ladies and gentlemen, as we start this session, we would like to play the video message from Shri S. Jayashankar ji, our Honorable External Affairs Minister, who has given a new shape and direction to the Indian foreign policy. A person who in fact is highly admired for his stance on the world affairs. And even in these geopolitical crises which we have seen under his guidance, India today is playing a very prominent role in the world affairs. We have a message from him which we would like to play for all of you. It is a great pleasure to join you all at the Madhya Pradesh Global Investors Summit. I was myself in Indore till yesterday and can very well understand your impressions and sentiment about India's cleanest city. While many would naturally see this as a reflection of social awareness, let me cite it as a deep testament to the quality of governance as well. And I know that for investors anyway, it is the delivery on the ground to which they give the greatest attention when it comes to making choices. Those of you who are coming to India after a gap will, of course, attest to the transformation underway. But for even those who live in India itself, our evaluations are necessarily competitive. In a diverse and plural society, the Modi government encourages competitive federalism. We would like the state governments to vie with each other in making themselves attractive as an investment destination. And it is not just Indore, but the larger picture in Madhya Pradesh that you will find exciting. I will, of course, leave it to the Chief Minister and his colleagues to dwell further on this issue. They will no doubt speak of the high growth rate, the rapid infrastructure progress, and the remarkable agro-export performance, amongst others. On my part, allow me to present your investment decisions in terms of a larger global picture. The world emerging from the COVID pandemic is a fundamentally different one. We have all realized the importance of more reliable and resilient supply chains. Equally, there is a concern about the vulnerabilities resulting from excessively high dependence on limited geographies.
The big trend in the world is to de-risk the global economy from pandemics, from conflicts, from climate events, and from other disruptions. And the solution there is to diversify manufacturing, production, and services. It is precisely in that quest that many of you are here at this event. There are also important data and technology facets to this challenge. Just as we seek reliability in supply chains, we also value trust and transparency in the digital domain. This also applies to respect for rules and adherence to contracts. When it comes to technology, there is a growing realization both about the talent of India's human resources and benefits of collaboration with our companies. In a knowledge economy, human resources will become more crucial with each passing day. This may be expressed in mobility, but equally in friend-shoring and trust-shoring. The Modi government has initiated a set of reforms in associated fields that start from health and nutrition and extend to education, skill development, and innovation. In recent times, India's startups, contract engineering, and industrial manufacturing have all kept pace with each other as a consequence. My message to you is therefore this: evaluate objectively the changes in India, including in the state of Madhya Pradesh. Please note how much easier we have made it to do business. Do appreciate the extent to which we have enhanced ease of living. Assess as well the improvements in governance and the effectiveness of digital delivery. Most of all, feel the buzz and sense the optimism in a world that can look so challenging at times. This, ladies and gentlemen, is surely the place to invest, the time to invest, and the partner to invest. I thank you and wish you all a productive deliberation. We thank Shri S. Jaishankar ji for his way forward address, guiding the investors that this is the time for India. Lot many opportunities coming in, and see for yourself and invest in India. We thank him. And ladies and gentlemen, we have just now been joined by Dr. Virendra Kumar Khatik ji, हमारे माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री. उनका भी हम स्वागत करते हैं आप सभी की तालियों के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें अंगवस्त्रम भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए. देवी सज्जनों, आप सभी साक्षी हैं मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की सफलता की तरफ. आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टुवर्ड्स द सक्सेस of this summit and making everyone feel comfortable. But then we would like to hear from our dignitaries also here on the dais their experiences. So would like to first request and invite Ms. Jennifer Dobney, the Honorable Minister Commercial, Canada Embassy, to kindly share her experience. Good afternoon. Good afternoon, distinguished guests. I would very much like to thank the Honourable Chief Minister, Shivraj Singh Chauhan, for inviting Canada to be a partner country at Invest Madhya Pradesh Global Investor Summit 2023. Mujhe bukane kai liye da yavad maniye Shivraj Singh Chauhan ji. And I would like to recognize the Honourable Chief Minister for the very business-friendly environment you have created in your state. The dynamism and forward-thinking nature of this Global Investor Summit bodes very well for the future of this state. And I am certain the summit will contribute to bringing more investment to Madhya Pradesh, including from Canada. Canada has a history of business engagement with Madhya Pradesh. We currently have Canadian pension plan investments with a commitment of $115 million for road construction in the state, working with Dilip Buildcon Limited, which is a Madhya Pradesh, a local contractor. We also have the Canadian company Linamar with a casting
forging and machining manufacturing plant based in DWAS, and they are very active in the automotive sector. We think that such business and investment opportunities are the key to making both our countries more prosperous. We have a commercial relationship with India, which is now approaching $100 billion. And this is led by Canadian portfolio and institutional investment of nearly $70 billion. Canada's pension plans and private investors are helping to build the new India and the new Madhya Pradesh by investing heavily into infrastructure, renewable energy, and real estate. Add to that two-way trade in goods, services, foreign direct investment, and we get to nearly $100 billion in a commercial relationship. But I would say that any economist would look at the relationship between our two countries and conclude that it is actually underperforming. The governments of Canada and India understand that and are acting. Our trade ministers, the Honourable Minister Goyal and the Canadian Minister for International Trade, Minister Ng, relaunched last year negotiations towards an early progress trade agreement, which will be followed by a comprehensive economic partnership agreement. This will provide an opportunity to level the playing field for exporters and importers in both countries. But I would say that business leaders in both countries are not waiting for the governments. They are acting now, and Madhya Pradesh is an excellent environment for them. Now that India has taken the helm of the G20, the world's premier economic forum, Canada will be working shoulder to shoulder with India as we navigate unprecedented global challenges to build a better future for our citizens. Congratulations again to the state of Madhya Pradesh, to the Honourable Chief Minister. Thank you very much for the warm welcome, and good luck in the future. Thank you. Thank you, ma'am. We really value your thoughts and your partnership. And now I would like to invite Ms. Fazila, the Honourable Minister of Social Integration, Mauritius. Thank you, Madam. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, ministers, delegates from across the world, distinguished guests, ladies and gentlemen. Namaskar, Shubh Sawar, good afternoon. इस सम्मेलन में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आकर। ये एक बहुत अचमच है निवेश के बारे में सोच विचार करने के लिए। It brings me an immense pleasure to be in the land of my grandparents who hailed from Surat in our endearing Gujarat. This was in the 19th century. It was a time when many Gujaratis were seeking a better opportunity and a brighter future in other faraway lands, such as South Africa, Madagascar, Réunion Island, and of course Mauritius as well. Most of them settled in those countries. So as you can see, I personally share emotional roots with incredible India. My grandfather was only 14 years when he followed the footsteps of his elder brother, who already settled in Mauritius and started business by opening a shop. When the time came for him to get married, he came back to Surat to choose his bride. Then they both returned to Mauritius and continued business. My uncle left Mauritius to settle in South Africa, and my grandparents spread, I must say, the business. The greatest legacy my grandparents passed on to us
is a legacy of values and, I must say, a demonstration of courage, patience, and perseverance in the face of challenges. May the Almighty bless their soul. I'm proud to be an Indian diaspora and thank India for all your support and contribution. I'm also delighted to be in Indore. What a wonderful city. I love every bit of Indore. The food is just delicious and gracious hospitality. Once again, I seize this opportunity to thank all of you in Indore. I feel very honored to be present in the Global Investment Summit. Dear friends, the Global Investment Summit is a great occasion for the business community from across the world to meet, connect, contribute, and explore trade and investment opportunities. India and Mauritius share a very special bond. So much of Mauritian history, heritage, traditions, and culture find their roots in the magnificent Republic of India. The ancestors of many Mauritians came from the Republic of India. I think 70% of the population. The Global Investors Summit, the focus of which is to see how investors around the globe can position themselves to manage risk and capture future opportunities, in particular, opportunities in the vibrant India. I express my deepest appreciation for all the panelists who have shared the valuable insight in their respective investment areas. These insights are all the more relevant given the extremely difficult global economic context. Over the years, India has emerged as one of the fastest growing economies in the world. It now offers a growing and thriving environment for investment, both domestic and foreign. India is among the very few countries who have successfully countered the fiscal challenges caused by the COVID-19 and its aftermath and the war between Russia and Ukraine. The current economic landscape could not have been gloomier. Global inflation has increased to unprecedented levels. Aggressive, prolonged tightening of monetary policies by central banks to curb inflation has further affected global demand and investment. However, both the Republic of India and Mauritius have managed to navigate through the risks and volatilities in our financial markets in these challenging times. The current context has given rise to major challenges, but it has also brought about new opportunities. In an effort to counter the current economic context, India has maximized investment in infrastructure, the digital economy, and other economic reforms. Thanks to these strong policies taken by your government, India is in a better position to recover from the aftermath of the pandemic. India's efforts to build an innovative and prosperous economy have been well highlighted by speakers at this high-level conference. India is ranked #1 in smartphone data consumption, global fintech, the IT BPM outsourcing distribution. India is also the world's third largest aviation and automobile market. At this point, I wish to commend the motivational and dynamic speech by your Prime Minister Narendra Modi ji yesterday virtually. The Prime Minister highlighted that the International Monetary Fund sees India as a bright spot in the global economy. The World Bank has also expressed that India is in a better position to deal with global headwinds than many other countries. As pointed out by Narendra Modi ji, India's economic success
is a result of a strong democracy, young demography, and, of course, political stability. Our presence at this global platform is testimony to the trust that the international business community has in India as an international financial hub. Representatives of around 314 major companies and several countries, including Mauritius, are present at this summit to expand their networks and build new businesses relations with India. I would like to see this opportunity to highlight that Mauritius is also an unparalleled, well-regulated and transparent international financial sector. I trust that this platform will have given you all the chance to discover the vibrant investment climate offered by my country. Leveraging on state-of-the-art infrastructure, modern and innovative legal framework, and ease of doing business regime, the Mauritius International Financial Center offers a panoply of competitive financial products and services, including private banking, global business, limited liability companies, protected cell companies, trust and foundation, insurance and reinsurance, investment banking, global headquarter administrations, just to name. Demand and supply drivers. On the demand side, we are looking at easing the ways to do business, concentrating on logistics, enabling manufacturing, and most importantly, capacity building. मानव संसाधन की श्रृंखला को बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं. And if you look at the supply side, under the leadership of the Prime Minister, we have been very clear that it has to be government-led investment growth. And therefore, close to a 10 lakh crore capex program annually by Government of India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. But as we forge ahead, it's equally important to make sure that all of India progresses together. संयुक्त विकास, समृद्धि संयुक्त रूप से हो, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं. And that is why across the board, from state governments to central governments, ensuring that we create a safety net for the economically disadvantaged in our country and make sure that they are partners in that progress. And over the last 2 years, over COVID, both central and state governments together have dispersed close to $300 billion right down to the grassroots level to every individual in our country. And may I add, because one of our speakers said that has not been done through the age-old system, but it has been done through the cutting-edge system of digitalization, our UPI payment system, which is not only an innovation, but a patent of India, which today has got acclaim across the world on a global scale. And therefore, I firmly believe that under our Prime Minister, India has emerged over the last 8 years from being the 11th largest economy in the world to today, in 2023, the 5th largest economy in the world. And let me commit that under his leadership, in 2030, India will become the 3rd largest economy in the world. So we are on our path of economic development. But that path of economic growth, that path of economic development runs through the heart and soul of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और देश का हृदय स्थल है.
And it is this Madhya Pradesh that has pivoted itself from its earlier Bimaru tag to becoming one of the highest growth center states in the country. And the reason for that, कहा जाता है ना कि हर सपने को साकार करने के लिए एक शिल्पकार की जरूरत है। मध्य प्रदेश का शिल्पकार इस मंच पे शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों के आधार पर, अपने मेहनत, परिश्रम, खून पसीना एक करके इस मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदली है। जो बिमारू राज्य कहा जाता था 2003 के पहले, आज देश में एक सबसे विकसित राज्य में परिवर्तित हो चुका है, जिसका सबूत इस मंच से हमारे इंडस्ट्री के भाई बहनों ने अपने व्याख्यान में कहा। A state that has grown at a CAGR, and my friends from industry will understand, what is important is not high growth rates, but compounded annual growth rates. A CAGR of 6.9% over the last 10 years, and in the last year, under the leadership of Shivraj Singh Ji, grown at 19.4% state GDP growth rate. That is the transformation. Now comes the question, why invest in Madhya Pradesh? There are 5 reasons that I will tell you, and those are not only our reasons for you, but economic reasons that are important for every business. The first is market access. A state which has a population of close to 88 million, 9 crore ki abadi, greater than the population of United Kingdom or Germany or France. And if you take our neighbors together, हमारे पड़ोसियों को आप साथ में ले लो, तो इस राज्य से अकेले आपको देश के 50% की आबादी को एक्सेस मिलती है. So the first is market access. The second is infrastructure. Under the leadership of our Chief Minister, we are now power surplus. We have built 300,000 kilometers of roads. We have capability across every sphere of economic development. We have 7 smart cities, 95 plus industrial centers. In Madhya Pradesh, you have every capability for every industry based here. The third is the whole issue of connectivity and logistics. Through highways, we are connected both on the east-west and north-south corridor. Ports are less than 1,000 kilometers away, both on our east coast and west coast. And most importantly, as one of my colleagues from industry said, in the area of civil aviation, Madhya Pradesh today has 5 functional airports. Due to the Chief Minister's persistence, we are soon going to be building the 6th airport in Rewa, thanks to the Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ji. In terms of connectivity, Madhya Pradesh 18 months ago had air traffic movements of only 554. Today, in 18 months, Madhya Pradesh has air connectivity of close to 856 air traffic movements, an increase of 60%. Indore alone was connected to only 12 cities. Today, Indore is connected to 23 cities. And on international connectivity, I'd like to give you the good news. Shivraj Singh Ji has been after me. Our Member of Parliament, Shankar Lalwani Ji, has been after me. Let me give the good news that in the month of April, we will be announcing connectivity from Indore to Sharjah thrice a week by Air India, a new connectivity for Indore on the international basis. So we have connectivity and logistics. We have skilled manpower in Madhya Pradesh. And finally, we have a conducive regulatory climate. Our Invest portal, the brainchild of Shivraj Singh Ji. Today, 45 permissions across 12 ministries can be garnered in a period of 24 hours. The testament to which we heard on this munch. So Madhya Pradesh is primed for investment. Madhya Pradesh is primed for growth. And it is our dream to see Madhya Pradesh as not only the heart of India, but the heart of growth of India. India has a dream of reaching a $5 trillion economy by 2026. Of that, $550 billion will be contributed by Madhya Pradesh alone. We have a new way of working under our Chief Minister. A way of working that signifies optimism, transparency, opportunities, a vision that looks at not necessarily only promising, but also delivering.
moving from a concept of red tapeism to a red carpet. So today, from this munch, I'd like to give my compliments to not only the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Ji Chauhan, but what I believe he embodies, which is the Chief Executive Officer of Madhya Pradesh in his persona. Finally, ladies and gentlemen, let me say this, that when you look at Madhya Pradesh, invest for the long haul, invest for the long term. Because as we believe in business, we look at ROI, return on investment. And that ROI in Madhya Pradesh is given to you by 4 factors. BEAM, the best entrepreneurial talent. Along with that, an environment of innovation. Along with that, certainly an environment that looks at enabling infrastructure. And finally, a transition from tradition to modernity. जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. और अगर भारत उस पथ पे चलेगा तो दुनिया की कोई शक्ति हमारे भारत को या हमारे मध्य प्रदेश को कभी रोक नहीं पाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you very much, Honorable Minister, sir, for your very inspiring and motivating address for the investors and further giving Madhya Pradesh the gift of air connectivity. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, हमारे माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री. आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्य के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, इकबाल सिंह जी, मनीष सिंह जी, एम्बेसडर्स, अन्य देशों के मंत्रीगण, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और इस मौके पर उपस्थित सभी इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और गरिमा प्रदान करने के लिए पधारे सभी महानुभाव बहनों और भाइयों, नया वर्ष प्रारंभ हुआ है. मैं नए वर्ष की आप सबको भारत सरकार की ओर से भी, अपनी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम इंदौर में हैं. इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है. मध्य प्रदेश में जब इंदौर का नाम आता है तो स्वाभाविक रूप से देवी अहिल्या जी की चर्चा होती है. उनका अपना उज्जवल इतिहास है. उनकी शानदार विरासत इंदौर के साथ है. और जब इंदौर में हम 2023 में हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि इंदौर में वर्ष का प्रारंभ बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है. इंदौर में प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ और इंदौर में ही ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का सम्मेलन हो रहा है. इसमें भी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इंदौर की धरा पर मिला और थोड़े ही दिन बाद G20 के भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इंदौर की धरा पर संपन्न होने वाले हैं. इन सभी कार्यक्रमों को
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम और इंदौर की जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछाकर अपनी सेवा, उदारता, समर्पण का परिचय दिया है, मैं समझता हूं कि पहले हम सब हिंदुस्तान के लोग इंदौर को याद करते थे, लेकिन इन कार्यक्रमों के बाद पूरी दुनिया में इंदौर को याद किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूरा हुआ। कल और आज सुबह मेरी अनेक लोगों से चर्चा हुई जो यहाँ से लौट कर गए। इंदौर की सारी व्यवस्थाओं के मामले में बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। निश्चित रूप से इसके कारण हम सब का सिर गौरव से ऊंचा उठ जाता है। मध्य प्रदेश हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है। मध्य प्रदेश की दुरावस्था और सुव्यवस्था दोनों का साक्षी रहने का अवसर मुझे मिला है। एक समय था जब कुछ कारखाने और कुछ उद्योगपति मध्य प्रदेश में काम करते थे। एक कालखंड 2003 से पहले ऐसा भी आया जब औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति यह मानने को बाध्य हो रहा था कि अब अपना काम ठीक से चलाना है तो दूसरे किसी राज्य में चलकर हम लोगों को कामकाज बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि शिवराज सिंह जी ने जब से कामकाज संभाला तब से पहले 2 साल तो मध्य प्रदेश में कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो सकेगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर मनुष्य का संकल्प मजबूत हो तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिवराज सिंह जी ने मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ किया। उन्होंने इस राज्य के एक एक गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसको भी कभी अनदेखा नहीं होने दिया। लेकिन मेरा मध्य प्रदेश इंडस्ट्री के पथ पर आगे बढ़े, मेरे मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़े, मेरे मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़े, मेरा मध्य प्रदेश दुनिया की अनेक योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाकर वह पुरस्कार अर्जित करे और मेरे मध्य प्रदेश में लोग आवें तो गौरव के साथ निवेश करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती को अनुकूल पावें। इस दृष्टि से उनका जो निरंतर प्रयत्न रहा उसी का परिणाम यह हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। पहले कुछ कम परिणाम आए, फिर कुछ ज्यादा आए, फिर कुछ और ज्यादा आए। लेकिन जब हम 2023 में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां बैठे हुए हैं तो मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि इसमें हमारे देश के जाने माने बड़े उद्योगपतियों ने तो इस कार्यक्रम में शिरकत की ही, लेकिन देश से बाहर 84 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर मध्य प्रदेश के इस इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है। और मैं इस मौके पर मध्य प्रदेश के एक नागरिक के नाते भी और केंद्र सरकार के मंत्री के नाते भी आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप जो मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उनके पीछे पीठ पर
पूरी तौर पर केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व खड़ा हुआ है। शिवराज सिंह जी आगे बढ़ेंगे, केंद्र सरकार कदम कदम पर उनको सहयोग करके मध्य प्रदेश ऊंचाइयां छुए, इस बात का निश्चित रूप से प्रयत्न करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि इन वर्षों में मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन आया है। चाहे रोड कनेक्टिविटी को हम देखें, एयर कनेक्टिविटी को देखें, रेल कनेक्टिविटी को देखें, डिजिटल कनेक्टिविटी को देखें। आज देश की जब ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं तो मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि देश के जीडीपी में मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत गौरव की बात है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो जो काम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ वो निश्चित रूप से अद्भुत है। आज कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार किसी भी राज्य को 7 बार लगातार कभी नहीं मिला, लेकिन मध्य प्रदेश ने यह अर्जित किया। और आज भी चाहे वो गांव की सड़क बनाने का सवाल हो, चाहे वो गरीबों को आवास देने का सवाल हो, चाहे वो डिजिटल एक्टिविटीज का सवाल हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, हर मामले में मध्य प्रदेश प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। इससे शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के प्रति दृढ़ संकल्प का परिचय हम सब लोगों को होता है। आप सभी लोग आज इस मौके पर यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको यही कहना चाहता हूं कि देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का सफल प्रयत्न कर रहा है और उनके साथ दूसरे इंजन के रूप में शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में निरंतर गतिशील रूप से काम कर रही है। आप आइए, पधारिए, निवेश करिए, आपको कोई शिकायत नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश के विकास में आपका योगदान हो, यही निवेदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। And ladies and gentlemen, we heard from everyone present here today on the dais and also from the audience that Honorable Chief Minister Sir Shri Shivraj Singh Chauhan ji is a shining example of what a committed person can do. सभी ने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में बागडोर संभाली मध्य प्रदेश की, तब इसे बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था और कहते हैं कि तब उस समय सड़क पर गड्ढे ज्यादा होते थे और रास्ता कम। एंड नाउ वी हर्ड दैट टुडे अंडर हिज लीडरशिप मध्य प्रदेश आज भारत के उज्जवल भविष्य का एक नवरत्न है और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि अथक प्रयास करते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उनको यहाँ पर बुलाते हुए मैं हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर कहना चाहूँगी जो बहुत सटीक बैठती हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देवियों सज्जनों, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने वाले हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आमंत्रित करती हूं हम सभी को संबोधित करने के लिए। थका तो नहीं हूं अभी। आज हमारे बीच मंच पर कृपापूर्वक उपस्थित भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी जिन्हें हम सुन रहे थे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सिविल एविएशन मंत्री जो लगातार कनेक्ट करते जा रहे हैं,
आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश के हमारे उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, डिप्टी चीफ मिशन ऑफ यूएई माहिम माजिद अलने खेलवी जी, एम्बेसडर ऑफ नॉर्वे हैंस जैकब फिडेनल जी, श्रीमती फाजिला मिनिस्टर सोशल इंटीग्रेशन मॉरिशस, श्रीमती जेनिफर डोबनी मिनिस्टर कॉमर्शियल एम्बेसी ऑफ कनाडा, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मेरे मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सहयोगीगण, मेरे उद्योगपति मित्र जो ऊपर भी बैठे हैं और नीचे भी बैठे हैं, और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, दुनिया भर के 84 देशों से आए हुए प्रिय बहनों भाइयों, और आज तो स्टार्टअप्स के मेरे भांजे भांजी भी आए हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अभी बोल रहे थे, देखो अगर इनका साथ ना होता, अकेले मैं नहीं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी विजनरी लीडरशिप और सदैव उनका साथ, हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों का सहयोग, जब जब जरूरत पड़ी, चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे फग्गन सिंह जी हो, चाहे वीरेंद्र कुमार जी हो, हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। और मेरे मंत्री साथी बैठे हैं, इस सफलता में बराबर के भागीदार राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य भी हैं, अधिकारी कर्मचारियों की टीम भी है, और ये सफलता साझी होती है। मैं सारी टीम को बधाई देता हूं, लेकिन मित्रों अब विदाई की बेला है। विदाई की बेला में एक बार फिर स्वागत, लेकिन विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। जिनने इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट दिए हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिनने नहीं दिया उनके भी पकड़ेंगे हम। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है, और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। इंदौर में ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उतर आई हो, सारी दुनिया सिमट गई हो। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अलग भाषा, अलग वेश, अलग रंग, लेकिन सब मिलके एक हो गए। इंदौर का रंग ही अलग जम गया। और जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम से दुनिया के 84 देशों के लोग मिले, वो अद्भुत है। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब एक परिवार हैं। मैंने अधिकांश से मिलने की कोशिश की। मैं माफी चाहता हूं, मैं सबसे नहीं मिल पाया, लेकिन यथासंभव कोशिश की कि कोई निराश ना जा पाए। अब मैं तो दुबला पतला आदमी हूं, हाथ मिला मिला के ही हाथ दुखने लगे। अच्छा, कोई तो बड़े प्यार से धीरे से मिलाता है, और कई तो एकदम कहते हैं हेलो चीफ मिनिस्टर। लेकिन अद्भुत प्यार है। और सचमुच में मुझे लगता है कि यही भारत के संस्कार भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
G20 के लिए भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दे दिया। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो भारत की परंपरा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब अपने जैसा सबको मानो। सब अपने जैसे मतलब अपने ही है, कोई किसी देश का हो, अगर हम सब मिलके एक हैं, पूरा विश्व एक परिवार है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ग्लोबल लीडर भी कहते हैं, और वो यहां दिखा। भारत का कहना है जियो और जीने दो, हम अकेले नहीं जीते, जियो और जीने दो। और विश्व का कल्याण हो, ये तो हमारे यहां, मैं विदेशी मित्रों से मेरी बात सुन रहे होगे, ट्रांसलेशन की व्यवस्था है। हमने बच्चों को भारत के गांव में सिखाया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। हमने कभी केवल भारत के कल्याण की कामना नहीं की, विश्व का कल्याण हो। और G20 का जो आयोजन हो रहा है भारत की अध्यक्षता में, वो भी विश्व के कल्याण का सर्वोत्तम उदाहरण बनेगा। देखो, अद्भुत देश है भारत। हमारे यहां मतभेद होते हैं तो अभी हम लड़ते नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। अगर मैंने कहा कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो हम लड़ते नहीं। उनका ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, ये मेरे लिए ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ईश्वर को अगर हम मानते तो उसको कहते हैं आस्तिक। तो कई लोग मानते हैं कि ईश्वर मूर्ति में आता है, इसलिए मूर्ति की पूजा करते हैं, साकार मानते हैं, भगवान साकार है। तो कुछ लोगों ने भारत में कहा कि ये साकार नहीं, भगवान एक मूर्ति में कैसे आ सकते हैं, वो तो सृष्टि के कण कण में निराकार हैं। तो उनका तुम भी सही हो, तुम साकार को मानो तो ठीक है, हम क्या नहीं मानते। किसी ने कहा तो निराकार को मानो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे यहां एक और हुए चारवाक, जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनको हमारे यहां सूली पे नहीं लटकाया, ये कहा कि यार इसने भी नया विचार दे दिया, ये भी महर्षि है, तुम भी सही हो, ये भारत है। और उसी भारत के प्यार से मध्य प्रदेश ने आपको बुलाया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 पार्टनर कंट्री में उनको धन्यवाद देता हूं। जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी, सबने अपने स्टॉल भी लगाए। 35 देशों के या तो एम्बेसडर या काउंसलेट जनरल या डिप्टी चीफ ऑफ मिशन उपस्थित रहे। 84 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स और 401 इंटरनेशनल बायर्स शामिल हुए। अभी बायर सेलर मीट के समय में चला गया तो ऐसी भीड़, ऐसे प्रेम से बैठे थे लोग, आपस में चर्चा कर रहे थे। इसने केवल हमसे नहीं जोड़ा, बायर सेलर को भी आपस में जोड़ दिया। लगभग 5000 से ज्यादा डेलीगेट आए। मुझे बताया कि जो एग्जीबिशन लगी 7000 से ज्यादा लोगों ने देखी। और सचिन जी यहां बैठे, G20 भी सारे के सारे 20 देश आए। G20 के बिजनेस डेलीगेट्स ने भाग लिया। एग्जीबिशन में आप जरूर, जिनने नहीं देखा हो जरूर देख के जाना, अद्भुत है दोनों एग्जीबिशन, डिजिटल भी और मध्य प्रदेश पे आश्रित भी। 2600 से ज्यादा B2B मीटिंग हुई, 200 से ज्यादा B2G मीटिंग हुई, जिसमें 5000 से अधिक व्यापारी
प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अलग अलग हमारे सेक्टोरियल सेशंस 20 क्षेत्रों पे हुए। आपने किसी न किसी में भाग लिया होगा। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1-to-1 मीटिंग, और जो सेक्टोरियल सेशंस है उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, कई 20 हुए, आपने कहीं ने भाग किया होगा। और इंदौर अद्भुत है। मैं सचमुच में कहता हूं, इंदौर से मध्य प्रदेश में निवेश का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। और अभी तो हम आंकड़े लगातार गिनते जा रहे हैं, कितना इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने लगातार आते जा रहे हैं। जाते जाते भी लोग कह रहे हैं नहीं अब तो मध्य प्रदेश में ही करेंगे। एक अद्भुत वातावरण है, विश्वास का वातावरण, निवेश की आइडियल डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और मध्य प्रदेश सजग है। अजब इसलिए कि 18 साल में हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। गड्ढे वाली सड़कों से लेकर शानदार हाईवेज तक और गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर। मैं प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, इंदौर वासियों को बधाई देता हूं। इंदौर भी क्या है भैया, सचमुच में अद्भुत। बीमारू से हम मध्य प्रदेश अब अग्रणी राज्यों में, जैसे आपको बताया 19% से ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी। गजब इसलिए है कि संसाधन से संपन्न है, लेकिन शांति के टापू हैं, अध्यात्म का केंद्र है, पर्यटन में बेजोड़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर इंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे चलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए पीएम साहब ने कहा गजब है। और सजग इसलिए हैं कि हमने अपनी कोर क्षमताओं को ही अपनी शक्ति बनाया। चाहे एग्रीकल्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, लॉजिस्टिक्स हो या आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, यह मध्य प्रदेश की असली ताकत है। और इन सब में हम देश में अब अग्रणी हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार और एक सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस टीम के भरोसे कि विकास को निर्णायक गति दे के ही रहेंगे, जिसमें निवेश शामिल है। मित्रों, आज आपसे जो अलग अलग सेक्टोरियल सेशंस में कुछ तरह की समस्याएं आई, मैं उन पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। लेकिन मुझे सीईओ भी कहा, सिंधिया जी ने भी कहा, तोमर जी ने भी कहा, और इसलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के सीईओ के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। टीम मध्य प्रदेश हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। हम आपको ऐसा वातावरण देंगे कि आप खुद आगे भी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मेरी 7 सूत्रीय रणनीति, नंबर 1 संवाद लगातार, और नहीं तो इन्वेस्टर समिट में बुला लिया, बाद में फिर टाइम मांगा तो दिया ही नहीं। हम लगातार आपके, हमारी टीम लगातार संवाद में रहेगी। दूसरा सहयोग, हर परिस्थिति में आपको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग। तीसरी सुविधा, नीति के अनुसार हर सुविधा देंगे। चौथा स्वीकृतियां बिना चक्कर लगाए निश्चित समय सीमा में
आपको सारे क्लियरेंसेज मिल जाए। 5वां सेतु, उद्योगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जिसका मैं जिक्र करूंगा। 6वां सिंगल विंडो सिस्टम, सरलता। सिंगल विंडो मतलब रियल सिंगल विंडो नहीं, कई बार सिंगल विंडो भी 7वीं 8वीं विंडो बन जाती है। और इसके बाद समन्वय, नहीं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यहां से आगे निकला तो वहां अटक गया। लेकिन समन्वय विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न एजेंसीज के बीच, यह हमारी रणनीति है। इस पर हम अमल करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन चर्चा में से जो बिंदु निकले, एक विशेषकर गारमेंट सेक्टर्स के मित्रों ने कहा था, और एक बात सच भी है, ये बात हमारे स्टार्टअप्स पे भी आज सत्र हुआ। कई बार पूंजी कम है, और कम पूंजी में आप जमीन भी खरीद लो, आप बिल्डिंग भी बना दो, तो फिर मशीनरी के लिए पैसा कहां से लाओ? और इसलिए हर एक को जमीन क्यों खरीदनी पड़े, हर एक को बिल्डिंग क्यों बनानी पड़े? इसलिए हम गारमेंट सहित आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर में तो प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी दे रहे थे, लेकिन गारमेंट सहित बाकी क्षेत्र में भी हम प्लग एंड प्ले की सुविधा विकसित करेंगे। और वो सरकारी सेक्टर में भी करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहे तो उसका भी स्वागत करेंगे, ताकि मेरे बच्चों को बड़ी पूंजी ना लगाना पड़े। बना बनाया अगर स्थान उसको मिल जाए तो अपनी मशीन लगाए और काम प्रारंभ कर दे। ये प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। और दूसरी चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, कई तरह की कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को अगर आए तो हर कठिनाई के लिए लोग भोपाल आए, ये जरूरी नहीं है। मैं अपने इन्वेस्टर मित्रों को या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये कह रहा हूं, आपके पास अगर कोई निवेश के क्षेत्र में समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए इन्वेस्ट MP गांव इन पोर्टल पर हाउ कैन आई हेल्प यू की विंडो खोली जा रही है। आप अपनी समस्या का उल्लेख करें, उसके बाद मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, और जब तक संतोषजनक समाधान नहीं होगा हम फॉलो अप करते रहेंगे। और महीने में एक दिन मैं खुद भी जो समस्या आई उनकी समाधान हुआ कि नहीं हुआ उसकी समीक्षा करूंगा। मैं समझता हूं ये निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नंबर 3, मध्य प्रदेश में ईज स्टार्टिंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में हमने एक बड़ा निर्णय लिया है, और वो बड़ा निर्णय यह है कि हमारे चिन्हित अधिसूचित क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे हमारे MSME हो, मैं ये कह रहा हूं कि उद्योगपतियों को जमीन मिल गई तो उद्योग लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं। क्लियरेंस के लिए घूमते रहो कई दिन तक। आपको इंडस्ट्रियल स्टेट में जगह मिल गई, MSME की जगह मिल गई, तो कोई अनुमति नहीं लेनी, काम शुरू करो। अरे इन्वेस्टर पर भी भरोसा करो भाई, वो जमीन उठा के थोड़ी ले जाएंगे कोई। तो इस पे ताली बजाना तो जोर से बजाओ। अपन तो इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ने बताया कि यार ये समस्या, अब इसकी क्लियरेंस, अब उसकी क्लियरेंस, क्लियरेंस में ही क्लियर हो जाता है मामला कई बार। अब अटकने नहीं देंगे, भटकने भी नहीं देंगे। ले लगाओ, जो नियम प्रक्रिया खुद ही पालन करो। आप पर भरोसा पूरा।
और इतने ही नहीं, जो डीम्ड स्वीकृतियां के कंप्लायंस है उनके संबंध में भी उद्योग की स्थापना से लेकर 3 साल तक कोई भी सक्षम अधिकारी उद्योगों का निरीक्षण नहीं करेगा। इस पे भी जोर से ताली बजा। मेरा भाव समझ गए होंगे आप। और नहीं तो इंस्पेक्टर साहब आ गए, दिखाओ। अब बेचारे को लगाए उद्योग, देर नहीं हुई, बताओ। अब बताओ में ही हालत खराब हो जाती है उसकी। चेक करो, कोई चेक फेक नहीं जी, पूरा भरोसा आप पे। आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, लगाइए, अनुमति की जरूरत नहीं है और कोई निरीक्षण परीक्षण की भी जरूरत नहीं है। नियम और प्रक्रियाओं का आप पालन कीजिए। मामा को आप पे पूरा विश्वास है, आइए। क्योंकि बाधाओं को दूर करना हमारा काम है। फैक्ट्री लाइसेंस, डेवलपमेंट प्लान का अप्रूवल, भूमि आवंटन स्वीकृति, बॉयलर रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नई हाई टेंशन लाइन कनेक्शन की स्वीकृति। तो पता चला बिजली वाले नहीं मिल रहे कई दिन तक। औद्योगिक क्षेत्र में भवन निर्माण, बिल्डिंग परमिशन, रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नए डीजल जनरेटर सेट इंस्टॉल करने की परमिशन। अब तो आप पे भरोसा है यार, आगे बढ़ो। अपन को मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, मिलकर बढ़ाना है। और दुनिया के प्रगति और विकास की मैं कामना करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। हम दुनिया की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगे और यहां भी मध्य प्रदेश समृद्ध बने, विकसित बने, आगे बढ़े। हम गरीब फरीब अब नहीं रहेंगे, बहुत हो गया जी। हम भी आगे बढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम अभी 1,37,000 है, अभी बहुत बढ़ाना है। हमारे बच्चों को रोजगार, वो खुद उद्योग लगाएं या लगने वाले उद्योगों में अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। आज मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए मेरे बेटा बेटियों, जो हमारे पास इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं, मैं अब उसका उल्लेख करना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा में 6,09,478 करोड़ के 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,80,753 करोड़। अरे धन वर्षा हो रही है तो ताली वर्षा भी हो जाए। 4,50,127 को रोजगार। फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,149 करोड़। 2,20,160 रोजगार। आईटी और आईटी के साथ जो एलाइड सेक्टर है 78,778। 2,22,371 को रोजगार। केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद 76,769 करोड़। 71,704 रोजगार। सर्विसेज में 71,351 करोड़। 1,66,700 रोजगार। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ईबी, इलेक्ट्रिक व्हीकल 42,254 करोड़। 69,962 रोजगार। फार्मा और हेल्थ केयर 17,991 करोड़। 1,42,614 रोजगार। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग 17,916 करोड़। 56,373 रोजगार।
टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स 16,914 करोड़, 1,13,502 रोजगार, और अन्य फुटकर खुदरा 1,25,855 करोड़, 1,24,168 रोजगार, कुल मिला के 15,42,514 करोड़ रुपया और लगभग 29 लाख रोजगार। ये एक बड़ी सफलता है। और जिनने ये प्रस्ताव दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है हम फॉलोअप का एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जिनने प्रस्ताव पोर्टल में प्रस्तुत किया है उसे मूर्त रूप देने के लिए तत्काल हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको किस क्षेत्र में निवेश के लिए क्या क्या सहयोग चाहिए वो सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी उनके द्वारा वांछनीय सहयोग मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। उसका पूरा मैकेनिज्म हम बनाएंगे। और 1-to-1 मीटिंग में भी बहुत आए मेरे पास, मैंने कहा कि हाथ बहुत मिलाए, हाथ नहीं मिलाए दिल भी मिलाए। और इसलिए इनके जो ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें जो सहयोग चाहा उस पर भी तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। चिन्हित इन्वेस्टमेंट पे हम एक फॉलोअप के लिए एक अधिकारी भी लगा देंगे पीछे, उनकी सारी चीजों को वो फॉलोअप करेगा। मेरे मित्रों, ये इन्वेस्टमेंट का समिट का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन पूरे विश्वास के साथ हो रहा है। ये सही कहा कि मध्य प्रदेश रनवे पे तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस समिट के बाद हम टेक ऑफ कर रहे हैं अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए। एक बार मैं फिर आप जो पधारे 84 देशों से सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे इन्वेस्टर मित्रों का स्वागत करता हूं। देश से मध्य प्रदेश से जो इन्वेस्टर पधारे और जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और मध्य प्रदेश पर विश्वास जताया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इस विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश की धरती पर हम निराश नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। इंदौर को धन्यवाद, इस पे भी जोर से ताली है। क्या शहर है साहब। लोग कह रहे थे कि गलियों में कचरा ढूंढने निकले, वहां भी कहीं नहीं मिला। सारा कचरा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश भी स्वच्छता में नंबर 1। इंदौर को, मध्य प्रदेश को, मेरे मंत्रियों की टीम को जो मंच पे नहीं आई लेकिन नीचे बैठ के दिनों रात काम करती रही, सीएसपीएस सहित सारे अधिकारी कर्मचारियों को, पत्रकार मित्रों को, कन्वेंशन सेंटर वालों को भी। लेकिन अब इंदौर में 10,000 की क्षमता का एक नया कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। ये अब छोटा पड़ने लगा, क्या करें। आईडीए के चेयरमैन बैठे हुए चावड़ा जी, तैयार हो ना तो तैयार कीजिए बड़ा, क्योंकि अगली बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। एक बार फिर आपका दिल से स्वागत, हृदय से स्वागत, भावनाओं से स्वागत। और अब विदा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे जाने नहीं दूंगा। रिश्ता परमानेंट जोड़ा है, बार बार आने के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सभी के लिए प्यार भरे संदेश के लिए और सभी पर विश्वास भरे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा न केवल सभी के साथ प्रयास के साथ, पर सभी के विश्वास पर के साथ भी, सभी पर विश्वास के साथ भी। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथिगण का, नॉर्वे से, मॉरिशस से यहाँ पर मंच पर उपस्थित, कनाडा और हमारे सभी उद्योगपतियों का। Thank you to each one of you also for being present with us, and thank you for your support, for your cooperation
Let's all work together towards a more उज्जवल मध्य प्रदेश. धन्यवाद भी करना चाहेंगे CII का, our national partners. Thank you, ladies and gentlemen. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी एग्जीबिशन ऑन रहेगी. आपसे निवेदन है, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, एग्जीबिशन ज़रूर देख के जाएं. एग्जीबिशन ऑन है, कल्चर स्ट्रीट भी. तो इस यहाँ पर हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है, पर एग्जीबिशन कंटिन्यूज. थैंक यू.